Good morning students. Today we are going to study about cell organelles. In cell organelles, the most important part is cell wall or cell membrane. Cell wall. What is the function of wall? Yes, the main function of wall is protection, covering, shape or boundary. In the same manner, here also, cell wall means it is the outer covering of plant or animal cell. In plant cell, cell wall is present, while in animal cell, cell membrane is present. So that is the main difference between plant and animal cell. For exam point of view also, it is very important कि if in exam it comes कि what is the difference between plant and animal cell. So you can write first point as कि in plant cell, cell wall is present, while in animal cell, cell wall is absent, but cell membrane is present. Now, what this cell wall is made up of? The cell wall, it is made up of cellulose, which is semi-permeable in nature, thin and elastic in nature. So first of all tell me, what is semi-permeable? Semi means half, permeable means permission, permit. So it means semi-permeable means the things or any substance which allow only some things, selected things to get into it. That is known as semi-permeable membrane or semi-permeable in nature. फॉर एग्ज़ाम्पल चाय की छन्नी कि चाय की छन्नी हम कैसे यूज़ करते हैं, कोई भी सीव कि हम क्या करते हैं, जब चाय उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि वाटर या चाय नीचे चली जाती है और जो पत्ती होती है वो ऊपर आ जाती है. तो वो कैसी मेम्ब्रेन है? इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कि वो सारी चीज़ों को नीचे जाने नहीं देती है. इट अलाउ ओनली सिलेक्टेड थिंग्स टू गो इनसाइड. So that type of membrane is present in the cell, that is known as semi-permeable membrane. Now, what are the functions of this semi-permeable membrane, or what are the functions of cell wall or cell membrane? So first function, as I have already told, the first function of cell wall is protection of cell. ये क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, बाहरी किसी भी चीज़ से, कोई भी आउटसाइड मटेरियल से उसे प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल. सेल को शेप और रिजिडिटी देता है, थिकनेस देता है. नेक्स्ट, इट हेल्प इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल कि कोई भी चीज़ है, अंदर जाना है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कितना अंदर जा सकते हैं, कब अंदर जा सकते हैं, ये सारा एक्सचेंज या गैशियस एक्सचेंज ये कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट सेल वॉल, इट्स फंक्शन एंड इट्स नेचर. So two main things are there. First is it is semi-permeable in nature, and second is it maintain the shape of cell and provide protection to it. Now we will move towards an important process called osmosis. So I am going to tell you what is osmosis and how it is done. What are its type? First of all, osmosis. It is a process of movement of water and minerals from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँ तो समझें कि सपोज़ कि हमने किशमिश लिया, ठीक है, उसे लेके रात भर के लिए पानी में डाल दिया. व्हाट विल हैपन? और रात भर के लिए नहीं, हम 2 घंटों के लिए डाल देंगे. क्या देखेंगे आप? Yes, you will see that resins या किशमिश they will swell. क्या हो जाएगी? फूल जाएगी. क्यों फूल जाएगी? Because it contains semi permeable membrane कि जो उसकी आउटर लेयर है वो बहुत पतली होती है, सेमी परमेबल होती है, और जब उसे हम पानी में डालते हैं तो उसके अंदर क्या चला जाता है? पानी उसकी मेम्ब्रेन में भर जाता है, उसके अंदर भर जाता है. और कब तक भरता रहता है?
till both the concentrations are equal। क्योंकि आपने देखा है ऐसा होगा क्या कि रात भर डली रहे और वो किशमिश फूट जाए, ऐसा होता है क्या? नो, इट नेवर हैपन्स। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब इनसाइड और आउटसाइड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है, देन द एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्टॉप्ड। वो एक्सचेंज रुक जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेज आने पर रुक जाता है। ये एक्सचेंज कब तक होता है? ओनली टिल देयर इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, कि जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है तब तक ही एक्सचेंज पॉसिबल होता है, और यदि कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया तो ये रुक जाता है। एक और एग्जांपल लें, सपोज़ हम अंगूर है या कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, यदि हम ऐसे ड्राई सीजन में उसे दिन भर के लिए बाहर रख दें तो क्या हो जाएगा? इट विल श्रिंक। सो दैट श्रिंकिंग इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। So now I am going to tell you about types of osmosis. Osmosis दो तरीके का होता है, endoosmosis and exoosmosis. You can remember like this. Endo means entry in, inside. So endo means it is the process of entry of water inside the cell. एंट्री, कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस की किसी भी सेल के अंदर जाएंगे, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मीन्स एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर जाना। सो एक्सोऑस्मोसिस मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, कि जब वाटर सेल के बाहर जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ये एंडो और एक्सो दोनों मिला के ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस बनाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल, फॉर आवर बॉडी, कि इससे गैसेस का एक्सचेंज, वाटर का एक्सचेंज, मिनरल का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। I hope you have understood about osmosis. For any query, you can ask me.